A very pleasant morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and I am your social science teacher. So, kids, in our previous class, we discussed about the ward counselors and administrative staffs. We talked about ward counselors who got elected. The city is divided into different wards, and the ward counselors get elected. Okay, and all the complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of counselors. Okay, so now our next topic is we have done till here. Now just go through this box. How does the municipal corporation get its money? Very important question कि अब उनके पास पैसा कहाँ से आता है? काम तो वो कर लेते हैं कि वाटर सप्लाई का काम भी वो मैनेज करते, दे आर मेंटेनिंग द वाटर सप्लाई सिस्टम, दे are establishing and maintaining primary and secondary schools also, they are even making arrangements for street lights also, even they are maintaining fire brigades for saving people from fire, even they are no, they are constructing roads, bridges, public buildings, etc. But the money, how does the municipal corporation get its money? पैसा कहाँ से आता है? So providing and running so many services require a lot of money. The municipal corporation collects this in different ways. A tax is a sum of money. Just underline this statement. Everyone in your book, underline this statement. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services government provides. Government जितनी भी services provide करवा रही है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसकी वो यूज कौन कर रहा है? हम लोग ही तो यूज कर रहे हैं ना, रोड्स को कौन यूज कर रहा है? वी आर यूजिंग दैट रोड, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई कर रही है, ठीक है, और उसका हमें हमसे बहुत ही एक मिनिमल चार्ज ले रही है, तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रीट लाइट्स लगवा रही है, वो स्ट्रीट लाइट्स कौन यूज कर रहा है? हम लोग यूज कर रहे हैं। तो टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज, फॉर द सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके लिए जो भी पैसा लोग गवर्नमेंट को देते हैं, उस पैसे को हम, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? उस मनी को हम टैक्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दैट मनी? वी कॉल दैट मनी अ टैक्स। टैक्स इज अ सम ऑफ मनी that people pay to the government for the services the government provides. So the money which is paid by the people to the government for the services government provides us is known as tax. Okay, so people who owns home have to pay a property tax as well as taxes for water and other services. The larger the house, the more the tax. Property taxes, however, forms only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. Now, पीपल हु ओन्स होम, जो घर खरीदते हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। इवन जो भी वाटर सर्विसेज ले रहे हैं या जो भी सर्विसेज ले रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। जितना बड़ा आपका घर होगा, लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, उतना ही ज्यादा आपका टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस however forms only 25 to 30% of the money. जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल जितना भी मनी है उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स only 25 to 30% का है। There are also taxes for education and other amenities. Yes, education or other basic amenities या basic necessities. Amenities means basic necessities के लिए term use किया गया है यहाँ पे, amenities. So there are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. अगर आपके पास कोई होटल है या आप कोई शॉप ओन करते हैं, you have to pay tax for that for this as well. ठीक है, उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी वहां पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इवन इफ यू आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट में भी आपको जो है
जो है टैक्स पे करना पड़ता है। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. Normally, rich people जो है ज़्यादा से ज़्यादा property taxes पे करते हैं, और normally जो people है वो general taxes को क्या करती है, वो general taxes पे करती है. Okay, now just look at this picture given here. एक कबाड़ी वाला जो होता है, ठीक है, वो हमारे गली में तो आता है, हमारे घर का जो भी कबाड़ी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो हमसे खरीद के लेके चला जाता है। तो उसके बाद ये शॉप में देखो क्या कर रहा है, रिसाइकलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग. People like the man in the photo above have been recycling paper, metal, glass and elastic for a long time. The kabadiwala plays a major role in recycling household plastic and paper, including your notebooks. So the notebooks which we are using right now, and after some time that notebook is not useful for us. So what we do, we sell it to the कबाड़ी वाला. अब देखो दिवाली की सफाइयां जब होती है, या फिर जब आपका ये ईयर एंड होता है, या आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके घर में जितना भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स हो जाते हैं, या फिर जो भी नोटबुक्स जो यूजेबल नहीं है, या व्हाटएवर द शैम्पू यू आर यूजिंग द शैम्पू बॉटल, वो शैम्पू अगर अब खत्म हो गया तो शैम्पू बॉटल आपके काम का नहीं है. तो व्हाट आवर मम्मा डू कि कबाड़ी वाला आता है तो कबाड़ी वाले को वो सारी की सारी चीजें क्या करती है, बेच देती है. और ये सारी चीजें क्या करते हैं, कबाड़ी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसाइकल करने में. मतलब उसको रिसाइकल करते हैं, और उन सारे जितने भी प्लास्टिक्स हैं, पेपर है या नोटबुक्स है, उन सबको रिसाइकल करते हैं और फिर से कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. तो कबाड़ी वाला प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन दिस. ओके, now next topic is a community protest. Yasmin Khala continued. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it was the ward councillor who we should go and protest, since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house, and he came out and asked them what was wrong. So now this community protest, before that in our earlier class what we have studied about कि जो यास्मीन खाला की जो कॉलोनी थी, ठीक है, जिस सोसाइटी में वो रहती थी, तो पहले वहां पे बहुत सारा गार्बेज, कोई गार्बेज कलेक्ट करने वाला नहीं आता था, तो गार्बेज जो है वो ऐसे ही स्ट्रीट्स में पड़ा रहता था. नेबरहुड्स में जो जितने भी गार्बेज वगैरह थे वो अनकलेक्ट होते थे. अनकलेक्शन की वजह से क्या होता था, बहुत सारे डॉग्स को, रैट्स को, फ्लाइज को वो अट्रैक्ट करता था. लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, बहुत गंदी स्मेल आती थी. इवन बच्चों को भी, जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे खेलने के लिए. तो किस वजह से नहीं भेजते थे, जिससे कि उनको, क्योंकि बीमारी हो जाती थी. ठीक है, अब इसीलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक इसके अगेंस्ट में कुछ कहा. तो यास्मीन खाला ने बताया कि वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन. ऑब्वियसली जितनी भी औरतें थी बहुत ज्यादा नाखुश थी, बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी इन सिचुएशंस को देख के. सो दे इवन केम टू मी फॉर एडवाइस. वो मेरे से सलाह लेने आई थी, एडवाइस. ठीक है, दे इवन केम टू मी फॉर एडवाइस. I said I could try and speak with some officer in the department. मैंने कहा कि मैं एक अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करती हूँ, बट शी wasn't sure how long it would take, कि कितना लंबा समय लगेगा. फिर वो गंगाबाई के पास गई, जो उनके वार्ड काउंसलर थे ना, उनके पास गए, and who we should go and protest since we are the ones. अब गंगाबाई के पास गए और उनके साथ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि गंगाबाई को इलेक्ट एज अ वार्ड काउंसलर या पार्षद किसने इलेक्ट किया था, उन्होंने ही इलेक्ट किया था. तो बहुत सारी जो वुमेन हैं
वो उनके घर के सामने गई एंड वो स्लोगन शाउट करने लग गई, स्लोगन्स लगाने लग गई उनके घर के सामने. he came out she came out and asked, गंगाबाई इज अ वुमेन, ठीक है, गंगाबाई, तो यहाँ पे शी होगा. वो बाहर आई और उनसे पूछा क्या गलत हो गया है, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू गाइस, व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू लाइक प्रोटेस्टिंग. Then Gangabai described the situation. Sorry, Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go. He is the term used for the he is the term used for the municipal corporation here. Okay. So Gangabai जो है उसने सारी जो जितनी भी situation थी उसको describe किया यहाँ पे, ठीक है, वार्ड काउंसलर को describe किया and he promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. अब उन्होंने कहा कि गंगाबाई को कहा कि आप अपने वार्ड में जितने भी एडल्ट्स है ना उनसे क्या करवाएं, एक सिग्नेचर करवा लीजिए कि हमारे कॉलोनी से जो है गार्बेज कलेक्ट नहीं हो पा रहा है. तो वो उन्होंने क्या किया, एक पिटीशन, यू कैन से नॉट पिटीशन, सिग्नेचर कैंपेन के जैसा था, उन्होंने सिग्नेचर करवा लिया. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That even children ran from house to house making sure that as many families as possible signed the petition. Now, even that ward councillor, that ward councillor suggested him कि आप जो है क्या करें, एक सैनिटेशन इंजीनियर को भी क्या है अपने साथ ले लीजिए, जो इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएगा और अच्छी तरीके से बता पाएगा. इवन चिल्ड्रन भी जो है घर से जा रहे थे टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी एज फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटीशन, हेल्प कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस पिटीशन को क्या करें, साइन करें. The next morning, a large group of women and the ward councillors and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. The commissioner met with this large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." Now, गंगाबाई अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो गए वार्ड काउंसलर के साथ जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में गए और वो कमिश्नर से मिले और उन्होंने कहा, अब कमिश्नर भी एक्सक्यूजेस देने लग गए थे कि हमारे पास तो ट्रक्स ही नहीं है, वी आर नॉट we don't have enough trucks to collect the garbage. तो गंगाबाई ने भी बहुत स्मार्टली आंसर किया, अच्छा आपके पास मतलब रिच कॉलोनी से तो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आपके पास पैसा है, पर आपके पास यहाँ से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए हमारी लोकेलिटी से या पुअर लोकेलिटी से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ट्रक्स नहीं है. That must have left him lost for words. Wept Jahangir. Now Jahangir, like he said, हाँ इससे तो वो बहुत ज्यादा like उसके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं होगा. It was he wittily remarked the statement. Quipped का मतलब क्या होता है, make a witty remark. जब आप बहुत ही witty remark करते हो ना, ठीक है, आप बहुत ही ऐसे सरकास्टिकली जब कोई रिप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं witty, quipped reply, quipped जहांगीर ने ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही विटली कहा. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women could protest in front of the corporation, said Yasmin Khala. So did the streets get cleaned? Asked Rehana, who never let things remain unfinished. Now, he said, yes, I would
take the decision, I would take care of it immediately. And गंगाबाई ने उसे थ्रेट किया, मतलब थ्रेटन करना, मतलब थ्रेट करना मतलब डराना, ठीक है, कि अगर ये 2 दिन में साफ नहीं हुआ या ये काम नहीं हुआ तो हम आपके ऑफिस के सामने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। यास्मीन खाला ने कहा। सो देन रेहाना आस्क्ड, so did the streets get clean? क्या उसके बाद streets clean हुई? Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. कि 2 दिन में तो नहीं हुआ, बट उसके बाद हमने एक और प्रोटेस्ट किया, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद से जो सैनिटेशन सर्विसेज थी, जो गार्बेज कलेक्शन वगैरह की थी, गार्बेज कलेक्शन की जो सर्विसेज थी, वो बहुत ज्यादा रेगुलर हो चुकी थी। Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. Now, माला कहती है कि एकदम मतलब एकदम बॉलीवुड फिल्म की तरह पूरा इंसिडेंट लग रहा है जिसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। So said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. अब वो भी इमेजिन करने लग जाती है ना, और उसने अपने आप को गंगाबाई के लीड रोल में इमेजिन कर लिया था कि मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ इन सब के अगेंस्ट में। So the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's ideas?" Now, जितनी जो भी गंगाबाई की स्टोरी थी, बहुत ही बच्चों ने बहुत ही इमेंसली जो है उसे सुना। इमेंसली मतलब कि बहुत ही एक्साइटेड होके बहुत ही इतनी बड़ी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना। एंड उसके बाद दे सेंस yes why गंगाबाई was loved and respected, कि उनको रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, इतनी लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। फिर खाला को उन्होंने थैंक्स कहा, और वो जैसे ही वो निकलने लगे तो जो रेहाना है उस खाला से पूछती है वन लास्ट क्वेश्चन, कि जो 2 डस्टबिन हमारे घर पे अभी है वो भी क्या गंगाबाई का आइडिया है? Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. When we sort out own garbage, it reduces their work. Yes. So now this was the idea of municipal corporation कि अगर हमें अपनी streets clean करनी है तो हमें भी अपना garbage जो है सॉर्ट कर लेना चाहिए, कि सूखा कचरा एक जगह रखना चाहिए, गीला कचरा एक जगह रखना चाहिए। आई बिलीव आप लोगों के घर पे भी यही चीज फॉलो की जाती होगी कि यू हैव 2 डस्टबिन्स, one for the wet garbage and one for the dry garbage, right? So the children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to Khala's house. Now, बच्चों ने क्या किया, खाला को थैंक्स कहा और वो स्ट्रीट में गए और उन्होंने देखा कि बहुत लेट हो चुकी है। एंड लाइट ऑब्वियसली लाइट जो स्ट्रीट लाइट भी टूट चुकी थी, तो वो उसके लिए फिर से उन्होंने ऊपर देखा और हंसते हुए खाला के घर चले गए। ठीक है, so now just look at this, there are 2 green boxes. Just what has changed since Khala's retired? So what Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. Now what is this subcontracting? अब यास्मीन खाला ने बच्चों को नहीं बताया, बट पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अपना पैसे बचाने के लिए क्या करती थी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को गार्बेज कलेक्शन के लिए हायर कर लेती थी, और इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता है। नाउ व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। कि ऐसा काम जो पहले गवर्नमेंट वर्कर्स कर रहे थे, अब वो एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। These contract workers get paid less and their jobs are temporary.
Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not even care of if they are injured while working. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको कंपैरेटिवली बहुत ही कम पे किया जाता है, उनकी जॉब्स भी बहुत ज्यादा टेम्पररी होती है, एंड एज यू ऑल नो गार्बेज को कलेक्ट करना बहुत ही डेंजरस जॉब है, हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं, ठीक है, बहुत ही डेंजरस जॉब है। बहुत सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं इन वर्कर्स को। ओके, सो आफ्टर दैट जस्ट लुक एट दिस। The city of Surat had a plague scar in 1994. Plague एक महामारी सा फैल गया था, ठीक है। Surat was one of the dirtiest cities in India. Houses, hotels, and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. Plague spreads through the air and people who have the disease have to be isolated. In Surat, several people lost their lives and over 3 lakh deserted the city. Deserted the city मतलब city छोड़ के चले गए. The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continues to remain one of the cleanest cities in India. Okay, so now in 1994 there was a plague in the city of Surat. गुजरात में एक city है सूरत, वहां पे प्लेग आ गया था, महामारी आ गई थी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया था। सूरत जो था वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी था, और आज के टाइम पे इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट डे इंडिया, इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज में आता है सूरत। So Surat was one of the dirtiest cities in India. बहुत सारे होटल्स, हाउसेज, रेस्टोरेंट्स अपना गार्बेज जो भी पास के ड्रेन या स्ट्रीट होते थे वहां पे क्या करते थे, डंप कर देते थे। तो स्वीपर्स को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी कि गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गार्बेज अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाती थी और इससे सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही थी। अब प्लेग फैल रहा था, ठीक है, 3 लाख पीपल जो है उनकी डेथ हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। 3 लाख पीपल, 3 लाख लोगों ने सूरत छोड़ के वो जाने लग गए थे। अब प्लेग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो थी अब सिटी को क्लीन करने का उन्होंने भी सोचा कि हमें सिटी क्लीन कर लेनी चाहिए, तो उसके बाद से सूरत जो है वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में। So class, this is all about this chapter. Go through this chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much. Bye bye.